I heard his name for the first time in the year 2014. Nobel Prize for Peace jointly awarded to Mr. Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai of Pakistan for their struggle against suppression of children and young people and for the right of all children to education. Renowned poet of Bhopal, Manzar Bhopali, organized an evening of Mushaira and Kavita with a very few selected personalities of Bhopal. The occasion was an evening of brotherhood and love in the presence of the Nobel laureate Shri Kailash Satyarthi. I saw him for the first time, simple man with a glow that had the blessings of the divine. I remembered his words from his famous speech in Norway after he was given the Nobel Prize for Peace in the year 2014. Freedom is the best gift of God. It is divine. If childhood is stolen, it is a sin against the Almighty. It is a sin against God. Manzar Bhopali recited his most adorable nazm, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी. तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे. On the rooftop of his house, facing the upper lake, the beauty of Bhopal in Madhya Pradesh. And what a gathering it was. We had bureaucrats, we had Olympians, we had writers, we had poets. Everyone, the elite of the crowd, was there. The theme was simple, brotherhood and love. And then Cook Speaks had a podcast with Mr. Kailash Satyarthi, which eventually turned out to be a speech, a lecture, a speak for the select audience on the rooftop. Of course, with the promise with Mr. Kailash Satyarthi that we'll soon have a podcast with Mr. Kailash Satyarthi, either in Delhi or in Bhopal, whenever we meet up next. That would be Cook Speaks and Mr. Kailash Satyarthi. Coming to his speech, Palestine or Israel, I don't want to get into the reasons. Why are these small innocent children suffering? I have collected 103 Nobel Prize winners to highlight the plight of these innocent children. Food, medical aid, shelter should be provided to these innocents. Do your bit for the society. Do not calculate the effect or the results. Go ahead and listen to this beautiful collection of small, meaningful extracts we have taken out of this magnificent speech by the Nobel laureate, Mr. Kailash Satyarthi. मैं कई बार सोचता हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता जब थी तब से लेके अब तक लोगों ने ईंटें बनानी शुरू की, फिर बाद में चूना, फिर सीमेंट और कंक्रीट ईजाद किया और इतनी सारी दीवारें बना डाली, मुल्कों की दीवारें, भरोसे की दीवारें, अलग अलग विचारधाराओं की दीवारें, अपने स्वार्थों की दीवारें. ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में दीवारों का जंगल खड़ा है. और आज वो वक्त है, यहाँ बैठकर मैं ये कहना चाहूँगा कि वक्त आ गया है कि हम दीवारों को तोड़ें. और संभव है कि उन्हीं ईंटों में से हम अच्छी ईंटें छांट कर पुल बनाने लगे. लेकिन जब मैं कुछ कवियों से, कुछ शायरों से मिलता हूँ तो उनके भीतर से जो सच्ची आवाज़ आती है, मुझे लगता है कि उस आवाज़ में ही वो प्यार है, वो ईमानदारी है, वो ताकत है कि वो आवाज़ इन दीवारों को ढहाने वाली साबित हो, क्योंकि और किसी से ये दीवारें ढहेंगी नहीं, फनकारों से ये दीवारें ढहेंगी. तो हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ दीवारें मत बनाइए, बहुत बन चुकी हैं. कोशिश कीजिए कि आपकी कविता दीवार तोड़ने की कुदाल बन जाए, आपकी शायरी इस तरह की हो जाए, तो हम एक बेहतर दुनिया बनाएंगे जहाँ आपस में कोई दूरियां नहीं रहेंगी. दुनिया में एक दो चीज और हुई इस बीच में कि जिस वक्त हम जानते थे कि फलस्तीन और इजराइल का जो युद्ध है, जो वार है, वो चलता रहता है. बहुत उसमें सेंसिटिव इश्यूज हैं जो हमारे बस के बाहर हैं. मैं खुद इससे महसूस करता हूँ कि भले ही बहुत सारे पैलेस्टीनियन हमारे दोस्त और कहीं
इजराइल में रहने वाले दोस्त भी ये महसूस करते हों कि हम नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं की जमात शायद उसमें कुछ मदद करेगी। ये जमात बड़ी भी नहीं है, हम लोग 18-20 लोग हैं जो अभी जिंदा हैं, इंडिविजुअल पीस प्राइज विनर्स। तो बहुत छोटी सी जमात है, हमारा आपस में रिश्ता भी अच्छा है। तो लोगों ने मजबूरी में सोचा कि हमारे ही नोबेल पुरस्कार विजेताओं को बटोला जाए और उनसे कहा जाए कि देखिए इस मुद्दे पर हमें बोलना चाहिए, क्योंकि तब तक कम से कम 1200-1500 मासूम बच्चे गाजा के अंदर मारे जा चुके थे और औरतें जो पेट में बच्चा लिए हुए थी वो तड़प तड़प कर मर रही थी और वो मंजर हम लोग देख रहे थे। पूरी दुनिया खामोश थी या कहीं रो रही थी, आंसू बहा रही थी, और कुछ लोग इस पे खुशियां मना रहे थे कि बड़ा अच्छा हो रहा है ये जो कुछ हो रहा है। सारे मुल्कों में हमने देखा, मैंने बहुत जगह फोन फान किए, मुझे रातों में नींद नहीं आई, उन बच्चों की चीखें मुझे लगता है मेरे पास से ही आ रही हो जो गाजा के अस्पतालों में मर रहे थे या स्कूलों में पिट रहे थे, या वो बच्चे जो चुरा के ले जाए गए थे इजरायली बच्चे, वो सब मेरे ही बच्चे थे। तो मैंने एक मेरी इजरायली दोस्त जो अमेरिका में हैं, नोबेल शांति पुरस्कार तो नहीं लेकिन साइंस का उन्हें पुरस्कार मिला था, उनको फोन किया, बूढ़े आदमी। तो मैंने कहा देखिए ये आवाज उठाइए, मैं हफ्ते भर से परेशान हूँ, 10 दिन हो गए हैं और हर रोज कोई ना कोई नया इसमें इजाफा होता जा रहा है एट्रोसिटीज में, आप कुछ कीजिए। तो वो मेरे से बड़े नाराज हुए, क्या बात कर रहे हो कैलाश, मैं तो सोचता था कि तुम बहुत बैलेंस और बहुत बुद्धिमान आदमी हो, यही मौका है जब ये पुराने सारे के सारे स्कोर सेटल कर लिए जाए, जो कुछ हो चुका है इतिहास में उसको अब ठीक करने का मौका। तो मैं बहुत घबरा गया और समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं, किसके पास। 10 दिन के अंदर 103 नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा मुझे चिट्ठी लिखकर या दस्तखत करके कि कैलाश तुमने आवाज उठाई है इस अंधेरे में, और हम सब मिलके दुनिया के हर मुल्क के प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, क्वीन से, किंग से अपील करेंगे कि सब लोग इसमें कम से कम ये आवाज उठाएं। काफी दुनिया में CNN ने, BBC ने इस पर बहुत इंटरव्यू किए, बहुत जगह अमेरिकी राष्ट्रपति भवन से खबर आई हमारे साथियों के पास कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, यूरोप से खबर आई, कई जगह से आई। हमने कहा एक ही काम कीजिए कि इन बच्चों को बचाइए, नहीं बचा सकते तो कम से कम जो फंस रहे हैं वो भूख से या दवा दारू के अभाव में ना मर जाएं, उन्हें कम से कम मरहम पट्टी तो मिले, जिन्हें चोटें लगी हैं, माँ बाप तो उनके चले गए। तो पूरा का पूरा डिस्कोर्स 1-1.5 महीने के अंदर बदल गया। यूनिसेफ ने इस काम को लिया, यूनाइटेड नेशंस ने इस काम को लिया, और दुनिया के कई मुल्कों ने ये कहा कि हाँ भाई बच्चों के मामले में हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तुम लकीरें खींच खींच कर कहते रहो मुझे भारत या पाकिस्तान, अफ्रीका, अमेरिका या इंग्लिस्तान, लेकिन मैं सिर्फ धरती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ धरती हूँ, एक ही धरती। तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे